Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in today's lecture of money supply. So in the last few lectures we have a discussion on various aspects of money, like what is money, what are the various functions of money, like the primary functions and the secondary functions and the contingent functions. After that we have a discussion on the various advantages and disadvantages of money. So now we are going to discuss one of the most important topic of this chapter, that is money supply. So how the money supply is determined by the government of India and the Reserve Bank of India, and what are the various measures of money supply, that is how we can measure the money supply in India. All these aspects will be discussed in today's lecture. So let's start with the basic meaning of money supply. So what is money supply? So if we talk about the concept of money supply, we can say that it is made of two words, money and supply. So first of all हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट्स कर देते हैं, मनी को अलग कर देते हैं और सप्लाई को अलग कर देते हैं. We discussed money and supply separately, then we combine these two words to frame the meaning of money supply. So what is money? We have already discussed about the meaning of money, जिसके अंदर हमने कहा था कि मनी क्या है. हमने उसकी डेफिनेशन दी थी मनी की, जो मैंने कहा था कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी, दैट व्हाट इज मनी. तो एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनी इज व्हाट मनी डज. जो मनी क्या है, कहते हैं मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी करती है. अब मनी क्या करती है, मनी क्या करती है, व्हाट आर दीज, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स द फंक्शंस ऑफ मनी. तो हमने बात की कि फंक्शंस ऑफ मनी जो हैं वो क्या हैं. दे आर द प्राइमरी फंक्शंस, जिसके अंदर हमने मनी के दो तरह के फंक्शंस इंक्लूड किए. वन इज दैट द मनी एक्ट एज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Number two, money works as a measure of value. Then we talk about the secondary functions of money, in which money works as a method of the deferred payments. Number two, money works as a store of value. Money works as a transfer of value. उसके बाद हमने बात की अदर फंक्शंस ऑफ मनी, जिसके अंदर हमने बात की कि इट वर्क्स एज अ method in which we can distribute the national income, or it is the method in which the consumer can get the maximum satisfaction, or the producer can get the maximum profit, or it's a bearer of option, or it's a guarantee of solvency. तो हमने ये सारे फंक्शंस जो हैं वो मनी के किए. सो मनी अल्टीमेटली क्या है, तो हम मनी को बहुत सिंपल अगर लैंग्वेज के अंदर बोले, सो मनी क्या है. मनी का बेसिक फंक्शन जो है वो ये है कि इट इज method in which we can make our transactions very easy. Number two, why we are going to make the transactions easy? Because it is a commonly accepted medium of exchange, which also works as a measure of value, store of value, transfer of value, method of deferred payment. So this is all about the meaning of money. So एक बात और जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि मनी जो है वो हर एक वर्ड होता है मनी, एक होता है करेंसी. सो मनी एंड करेंसी. मनी क्या है, मनी तो हमने सारी चीजें बोली. करेंसी जो है वो क्या है, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी यूनिट्स. लाइक हमने इंडिया की बात की, सो इंडिया का जो करेंसी यूनिट है दैट इज रुपी, है ना. और अगर हमने बात की थी जापान, तो जापान का करेंसी यूनिट क्या है, जापान की करेंसी यूनिट है येन. चाइना की क्या है, युआन. इंग्लैंड की क्या है, पाउंड. और अगर हम अमेरिका की बात करें तो इट्स अमेरिकन डॉलर. अगर हम कनाडा की बात करें सो इट्स कैनेडियन डॉलर. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें इट्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर. तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, वो करेंसी यूनिट्स हैं. सो मनी जब भी मेजर की जाती है वो हमेशा करेंसी यूनिट्स के अंदर मेजर की जाती है. अब आप उसको कैसे भी मेजर जो है वो कर सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. अब सप्लाई क्या है, सप्लाई का जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि सप्लाई क्या होती है. तो हमने कहा था सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों में एक गैप होता है, एक डिफरेंस होता है.
और वो क्या है? सबसे पहले हम यही डिफरेंस देखते हैं कि एक है प्रोडक्शन और एक है सप्लाई। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्शन मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक प्रोड्यूसर है, जैसे ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो ये एडजेल कंपनी का मार्कर है। सो इसके प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस तरह के मार्कर को प्रोड्यूस किया। सो उसने फॉर एग्जांपल बनाए 500 यूनिट्स ऑफ अ मार्कर। ठीक, तो मैंने कहा 500 यूनिट्स ऑफ मार्कर बनाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 500 यूनिट्स ऑफ मार्कर जो है वो क्या हुए, वो प्रोड्यूस हुए। तो मैं बोलूंगा कि जो प्रोडक्शन है वो कितने की हुई, वो 500 मार्कर्स की प्रोडक्शन जो है वो हुई। ठीक, अब जब वो उसको मार्केट के अंदर लेके गया तो उसने देखा कि एक्चुअली जो ये मार्कर है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो थी 20 रुपीज की, और उसको मार्केट में जो रेट मिल रहा था वो मिल रहा था 15 रुपीज का। अब वो कहता है मेरी कॉस्ट ही 20 है तो मार्केट में 15 मिल रहा है तो मैं तो नहीं बेचता। तो वो क्या करेगा, वो एक भी मार्कर जो है वो मार्केट में सेल नहीं करेगा। ठीक है, वो हमने बात की थी कि अगर उसको उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होती होंगी तो वो कुछ बेच देगा। सपोज करो कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 20 रुपी है, मार्कर की टोटल कॉस्ट 20 है। इसके टू पार्ट्स कर देते हैं, मतलब जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है वो 17 है और जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो 30 है, और जो उसको प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है उसको 15 रुपीज का। मतलब उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही तो वो चीजें नहीं बेचेगा। तो मतलब सप्लाई कितनी होगी, जीरो। सो प्रोडक्शन 500 यूनिट्स की है पर सप्लाई जीरो है। सपोज करो कि मार्कर का प्राइस इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होके वो हो गया 17 रुपी का। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो कहता है कि चलो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, सो मुझे जो लॉस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के लॉसेस हैं, तो मैं चल थोड़ी बहुत भेज देता हूं। तो एट अ प्राइस ऑफ 17 उसने क्या किया, उसने कहता है चल थोड़े बहुत भेज देता हूं, तो उसने 50 मार्कर जो है वो भेज दी मार्केट में। तो सप्लाई कितनी हो गई, 50। मान लीजिए कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होके 20 रुपी हो जाता है। वो कहता है अब तो मेरी कॉस्ट 20 थी, अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो रही है, साथ के अंदर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो रही है, चलो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहा है। सो इन दैट केस वो कहता है मैं सप्लाई करता हूं 100 मार्कर की। ठीक, सपोज करो कि प्राइस जो है वो हो जाता है 25 रुपीज का। अब कॉस्ट कितनी 20, प्राइस कितना 25। तो वो क्या कहता है, वो कहता है अब तो मेरे को 5 रुपीज के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, वो कहता है 300 यूनिट भेज देता हूं मार्केट के अंदर। सपोज करो कि प्राइस हो जाए 30 रुपीज का। अब वो कहता है कि यार इससे ज्यादा रेट तो मुझे मिल ही नहीं सकता, मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मुझे 30 रुपीज से ज्यादा रेट मार्केट के अंदर मेरे मार्कर का मिल सकता है। दिस इज द बेस्ट प्राइस जो मुझे मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए यार, जितने सारे के सारे भेज दो। तो वो क्या करेगा, वो कहता है सप्लाई कर दो कितने की, जितने बनाए थे सारे के सारे भेज दो, कुछ नहीं अपने पास रखना। यानी अब ध्यान से इन दोनों का डिफरेंस सोचो भी। अब प्रोडक्शन हुई 500 मार्कर की, अगर तो प्राइस जो था वो था 15 रुपी का, तो 15 रुपी पे तो वो सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता ना मैं तो भेजता ही नहीं। क्यों, क्योंकि 15 रुपी पे तो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कवर नहीं हो रही। अगर 17 रुपी है तो वो सप्लाई कर रहा था 50 की, अगर 20 रुपी रेट है तो वो 100 यूनिट की सप्लाई कर रहा था, 25 रुपी रेट है तो वो 300 यूनिट की सप्लाई कर रहा था, उसका रेट 30 रुपी है तो वो 500 यूनिट की सप्लाई कर रहा था। अब सोचो कि अगर बाय चांस अगर प्राइस हो जाए 40 रुपी, तो वो क्या करेगा। अगर मैं यहां पे लिखूं कि अब वो सप्लाई जो है वो कितनी करेगा, तो आप बताओ कितनी करेगा। अब सप्लाई तो ऑलरेडी 500 यूनिट्स की कर चुका है, मतलब जितनी उसने प्रोडक्शन की थी 500 मार्कर की, ज्यादा से ज्यादा उतनी ही सप्लाई कर सकता है। 500 यूनिट से ज्यादा उसके पास है ही नहीं, तो सप्लाई कहां से करेगा। मतलब जो मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर प्रोडक्शन ही 500 यूनिट की है, आपके पास स्टॉक के अंदर 500 गुड्स हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो सप्लाई करेंगे वो भी 500 यूनिट्स की ही करेंगे ना, उससे ज्यादा कैसे कर लेंगे। सो जो मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ठीक,
अब सोचो, अब जब 50 यूनिट सप्लाई हुए थे तो किस में से हुए थे? 500 में से। 500 क्या है? प्रोडक्शन। 100 यूनिट हुए थे तो वो भी 500 का एक पार्ट था। 300 हुए तो वो भी 500 का पार्ट है। 500 हुए तो वो भी 500 का पार्ट है। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई जो है वो अमाउंट होता है किसी भी गुड का या किसी भी कमोडिटी का जो कि पार्ट होता है प्रोडक्शन का। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मार्केट के अंदर लाया जाता है फॉर सेल। अब ध्यान से सोचो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सप्लाई क्या है? सप्लाई प्रोडक्शन का वो पार्ट है जिससे मार्केट के अंदर फॉर सेल लाया जाएगा। मतलब मार्केट में उसको इसलिए लाया जाएगा ताकि उसको बेचा जा सके। और जो सप्लाई है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? सप्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के इक्वल हो सकती है। प्रोडक्शन से ज्यादा सप्लाई होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या है? अब अगर हम वापस इसके मीनिंग पे आए, अब हम सप्लाई को इसके साथ कोरिलेट करें। अब ये आपको सिर्फ तभी क्लियर हो सकता है जब आपको सप्लाई का मीनिंग क्लियर होगा कि व्हाट इज सप्लाई। तो हमने सप्लाई का मीनिंग क्लियर कर लिया कि सप्लाई जो है वो क्या है? वो प्रोडक्शन का वो पार्ट है जिसे हम मार्केट में लेके आते हैं ताकि हम उसको सेल कर सकें। सो दिस इज अ सप्लाई। अब सोचो कि जो सप्लाई हो रही है वो किस चीज की हो रही है? सप्लाई हो रही है मनी की। तो कहता है मनी सप्लाई, यानी मनी की सप्लाई होगी, मनी मार्केट के अंदर आएगी। अब क्वेश्चन उठा कि मनी को मार्केट में कौन लेके आएगा? अब ध्यान रखो, मैंने क्या किया है? मैंने जस्ट मनी और सप्लाई को इकट्ठा कर दिया। सप्लाई का मीनिंग होता है वो चीजें जो मार्केट के अंदर आती हैं। अब मार्केट के अंदर क्या आ रहा है? मार्केट के अंदर मनी आ रही है। मार्केट में हो रही है मनी की सप्लाई। ठीक, मनी सप्लाई हो रही है मार्केट में। अब मार्कर की सप्लाई किसने की थी? अब मार्कर की सप्लाई कोई मतलब छोले कुलचे बेचने वाला तो करेगा नहीं। अब मार्कर की सप्लाई कौन करेगा? मार्कर की सप्लाई वो करेगा जो मार्कर को प्रोड्यूस करेगा। शर्ट्स की सप्लाई कौन करेगा? जो शर्ट्स को प्रोड्यूस करेगा। स्पेक्स की सप्लाई कौन करेगा? जो स्पेक्स को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब मनी की सप्लाई कौन करेगा? जो मनी को प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो मनी को बनाएगा। अब जो लोग मनी को बनाते हैं तो वो कौन है? सोच के देखो, जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी हैं वही लोग मनी की सप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है ही नहीं, वो मनी की सप्लाई कहां से करेंगे? अब क्वेश्चन उठा कि हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है उसने ही मनी की सप्लाई करनी है। सो प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन है? अगर हम इंडिया के एग्जांपल लें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि देयर आर टू प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। पहला जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेकंड जो प्रोड्यूसर है वो है आरबीआई। क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी करेंसी इशू की जाती है या तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है या फिर वो आरबीआई करता है। ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी कॉइन्स हैं, either it's a 50 paisa coin or the 1 rupee coin or the 2 rupee coin or the 5 rupee coin or the 10 rupee coin, okay, all the coins and 1 rupee note, okay, all the coins and the 1 rupee note are issued by the government of India, and the currency units of 2 rupee note and above denomination like 2 rupee, 5 rupee, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and so on, they are issued by the Reserve Bank of India. अब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर ये दो लोग जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द आरबीआई, हु आर दे? दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। ओके, इफ दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी तो फिर मनी सप्लाई कौन करेगा? अब मैंने अभी बताया था कि मार्कर की सप्लाई को छोले कुलचे बेचने वाला नहीं करेगा। मार्कर की सप्लाई वो करेगा जो मार्कर को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब मनी की सप्लाई कौन करेगा? जो मनी को प्रोड्यूस करेगा। अब मनी के प्रोड्यूसर्स कितने? दो। कौन कौन से? गवर्नमेंट और द आरबीआई। तो इसका मतलब जो सप्लायर ऑफ मनी है वो भी कितने हैं? वो भी दो ही हैं। कौन कौन से? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक आरबीआई। ठीक, अब मनी सप्लाई क्या है?
मनी सप्लाई वो है कि जितनी मनी यूनिट्स और जितने करेंसी यूनिट की सप्लाई की जाती है किसके थ्रू, either by the government of India or by the Reserve Bank of India। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट के अंदर कितने मनी यूनिट्स और कितने करेंसी यूनिट्स लेके आते हैं उसको हम बोलेंगे मनी सप्लाई। जैसे अगर मैं बोलूं कि सपोज करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सपोज करो इसको छोड़ देते हैं, सपोज करो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कहती है कि हमने ना इस बार 500 करोड़ के न्यू कॉइन्स, 500 करोड़ के न्यू कॉइन्स और 1 रुपी नोट जो है वो मार्केट में भेज दिए। आरबीआई कहता है कि मैंने इस साल जो है वो 1500 करोड़ के 2 रुपी नोट एंड अबव डिनोमिनेशन जो है वो मार्केट में भेज दिए। तो अब ये दोनों कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि मैंने 500 करोड़ के भेजे, ये कहता है मैंने 1500 करोड़ के भेजे। इट मींस द मनी सप्लाई इज इक्वल टू 2000 करोड़। ओके, सो जितनी मनी सप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की, नंबर 2 जितनी मनी सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, अगर हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, तो हमें मिल जाएगी टोटल मनी सप्लाई। अब टोटल मनी सप्लाई हमें मिल गई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब वो चीज क्या है, वो कहता है कि मनी सप्लाई को अगर हमने डील करना है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। ठीक, अब मनी सप्लाई जो है उसके बारे में दो मेन चीजें जो है ना वो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसमें से पहली चीज जो है वो क्या है, पहली चीज ये है कि जो मनी सप्लाई है हमने उसको हमेशा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट के तौर पे लेना है। व्हाट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट? सो मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई पहली बात जो है वो ये है कि इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये पहली चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। अब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद करो, जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट किया था तब मैंने इस चीज को क्लियर किया था कि देखो मैं बोल क्या रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो मैंने तब समझाया था कि इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉक वेरिएबल, एक होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लो वेरिएबल्स। तो हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, है ना, जब वो क्या है वो फ्लो वेरिएबल्स हैं। मतलब जब भी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की बात करते हैं, इधर इट्स अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, इट्स अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, इट्स अ 4 सेक्टर इकोनॉमी, हम उसके अंदर हमेशा फ्लो वेरिएबल्स को लेते हैं और एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल्स। अब स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है? स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान से, स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करता है। स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर ऑलवेज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मींस व्हाट? अगर मैं बोलूं कि अभी एट प्रेजेंट, मैं बोलूं कि अभी हुए हैं 8:58 और 30 सेकेंड, 8:58 and 30 seconds. So this is what? This is a point of time. So money supply is always measured at a point of time. ठीक, तो मनी सप्लाई को हमेशा हम पॉइंट ऑफ टाइम के तौर पे लेके चलेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो टोटल मनी सप्लाई कितनी है। पहली बात तो ये, क्योंकि मनी सप्लाई पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है तो इसलिए वो क्या है, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब फ्लो वेरिएबल्स क्या है? फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब यहां से लेके और यहां तक। जैसे मैं बोलूं 1st of January से लेके 31st of January, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अब जो मनी सप्लाई है, पहले तो ये याद रखना कि मनी सप्लाई जो है वो कभी भी जो है एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर नहीं होती। मनी सप्लाई हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। सो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम मनी सप्लाई को मेजर करेंगे उसको हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है वो हम मेजर करेंगे, एक पीरियड ऑफ टाइम
सप्लाई में मेजर नहीं करेंगे। अब याद कर लो, जब मैंने स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट कराए थे, मैंने स्टॉक के अंदर इसकी एग्जांपल दी थी कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल बिकॉज मनी सप्लाई इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो मैं बात की थी कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, वो एक फ्लो वेरिएबल है। इनकम वो क्या है, फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, सेविंग्स वो क्या है, फ्लो वेरिएबल है। कंजम्पशन फ्लो वेरिएबल है। तो स्टॉक में क्या आता है, मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल की एग्जांपल है। हमने बात की थी कि जो आपके घर पे वाटर टैंक है उसके अंदर जो पानी पड़ा है वो क्या है, वो स्टॉक है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या हैं, वो स्टॉक वेरिएबल के अंदर आती हैं। मनी सप्लाई जो है वो एक स्टॉक वेरिएबल है। क्लियर। अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड करेंगे। अब वो एग्जांपल यहां से निकलेगी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने इस बार 500 करोड़ के कॉइन्स और 1 रुपी नोट जो है वो मार्केट में भेज दिए। रिजर्व बैंक कहता है कि मैंने 1500 करोड़ के 2 रुपी नोट एंड अबव डिनोमिनेशन जो है वो मार्केट में भेज दिए। तो टोटल मनी सप्लाई हुई 2000 करोड़ की। ठीक, अब इसी एग्जांपल को यूज करते हैं ये समझने के लिए कि मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो सोच के देखो, अगर हम यहां पे बात करें तो अब ये तो थी सप्लाई, ये तो सप्लाई है। ठीक, अगर आरबीआई ये बोले कि हमने इस बार क्या किया, हमने कॉइन्स और नोट्स को प्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने 50 पैसा कॉइन से लेके ओके और 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी नोट, उसको मिला के हमने 800 करोड़ के करेंसी जो है वो पब्लिश की। ओके, अब 800 करोड़ की करेंसी पब्लिश की है। ये कहता है आरबीआई कि मैंने 2 रुपी नोट से अबव जितने भी नोट हैं वो सारे मिला मिलू के तो मैंने 2000 करोड़ की करेंसी जो है वो पब्लिश की। इसका मतलब इसने 800 करोड़ की न्यू करेंसी पब्लिश की, इसने 2000 करोड़ की न्यू करेंसी पब्लिश की। तो अब टोटल करेंसी पब्लिश हुई 2800 करोड़ की। ठीक, और मार्केट में कितनी भेजी, ये कहता है मैंने 500 करोड़ भेजे, 800 करोड़ पब्लिश किए थे, 500 करोड़ भेज दिए, 300 करोड़ मैंने अपने पास रख लिए। ये कहता है मैंने 2000 करोड़ पब्लिश किए, बीच में से 1500 करोड़ भेजे, तो 500 करोड़ मैंने अपने पास रख लिए। अब ये ध्यान रखना है कि जो करेंसी, ये वर्डिंग जो अभी मैं बोलने वाला हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कि जो करेंसी रिजर्व बैंक और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब दोनों का नाम क्यों ले रहा हूं, दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो हैं वो क्या है, इंडिया के अंदर दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। अब जितनी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जितनी करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पास रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, जिसको वो मार्केट में भेजते ही नहीं, तो उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना। ठीक, अब ध्यान से सोचो, जो टोटल मनी पब्लिश हुई थी वो थी 2800 करोड़, पर मार्केट में कितने भेजे, 2000 करोड़। मनी सप्लाई 2000 करोड़ होगी, वो 2800 करोड़ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब याद करो ये मार्कर वाली एग्जांपल, कि मार्कर का जो प्रोड्यूसर था उसने जो है वो 500 मार्कर बनाए। अब 500 मार्कर बना के मार्केट में भेजे, मान लो 300 मार्कर, तो सप्लाई कितने की होगी, 300 मार्कर की होगी, 500 की थोड़ी होगी। क्यों, क्योंकि 200 मार्कर तो उसने अपने पास ही रख लिए थे। सो जो कम्युनिटी, ध्यान से, जो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का जो प्रोड्यूसर है वो अपने पास रख लेता है, उसको मार्केट में भेजता ही नहीं, तो वो सप्लाई में थोड़ी आएगा। जैसे जो मार्कर का प्रोड्यूसर था उसने 500 मार्कर प्रोड्यूस किए, बीच में से 200 मार्कर अपने पास रख लिए, मार्केट में तो 300 गए ना, तो जो सप्लाई हुई वो तो 300 की हुई। वैसे ही जो वो मार्कर का प्रोड्यूसर है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो है ये क्या है, ये मनी के प्रोड्यूसर्स हैं, जो मनी प्रोड्यूस करते हैं। अब जितनी मनी ये अपने पास रख लेते हैं उसको मनी सप्लाई के अंदर काउंट जो है वो नहीं करना।
ठीक, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है। जितनी मनी ये दोनों लोग अपने पास रख लेंगे, मार्केट में भेजेंगे ही नहीं, तो फिर उसको हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। मनी सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा? सिर्फ वो मनी इंक्लूड होगी जो कि एक कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास है, या कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है। और कमर्शियल बैंक्स के पास भी सारे के सारे पैसे नहीं लेने, मतलब आपने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करा दिए। अब हमने बात की है कि बैंक में आप कई तरह से पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, होम सेफ अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आप बहुत सारे पैसे वहां पे डिपॉजिट करा सकते हैं। अब सारे के सारे पैसे मनी सप्लाई में नहीं आएंगे, कुछ मनी सप्लाई में आएंगे और कुछ मनी सप्लाई में नहीं आएंगे। अब कौन से आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, ये जब हम मनी सप्लाई को मेजर करेंगे तब हम बात करेंगे। मतलब अल्टीमेटली जितनी कमोडिटी लोगों के पास अवेलेबल होती है उसी को सप्लाई में काउंट करते हैं। वैसे ही जितनी मनी लोगों के लिए अवेलेबल होगी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, सिर्फ उसी को मनी सप्लाई के अंदर लेके चलना है। जो करेंसी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है उसको मनी सप्लाई के अंदर काउंट करके नहीं चलना। ठीक है, सो दो मेन चीजें हैं जो हमने मनी सप्लाई में बात करनी है। पहला क्या है, मनी सप्लाई जो है वो क्या है, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई को हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। नंबर 2, मनी सप्लाई में सिर्फ वो सप्लाई काउंट होगी जो क्या होगी, जो होगी अवेलेबल विद द पीपल ऑफ दैट कंट्री। मतलब जो उस कंट्री के लोग हैं, जितनी मनी उनके लिए अवेलेबल होगी, हम सिर्फ उसी को ही मनी सप्लाई के अंदर जो है वो लेके चलेंगे। जो मनी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है हम उसको मनी सप्लाई के अंदर लेके नहीं चलेंगे। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब मनी सप्लाई का पूरा मीनिंग देख लो। इकट्ठा मीनिंग क्या हुआ कि मनी सप्लाई, अगर इसकी डेफिनेशन देनी पड़े कहीं पे, सो मनी एंड सप्लाई। अब क्या हो रहा है, मनी की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। ओके, सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्लियर, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट which includes all those money units or all those currency units which are available with the people of a country at a point of time. Why it is called a point of time? Because it's a स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, जितने करेंसी यूनिट जो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी हैं उन्होंने अपने पास रख लिए, उसको आगे जाने ही नहीं दिया, तो उसको हम मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड जो है वो नहीं करेंगे। सो ये है आपका कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई का। ठीक, अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि अब आरबीआई ने 2800 के जो न्यू करेंसी नोट है वो जो पब्लिश किए थे, 800 के जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए, जो रिजर्व बैंक है उसने 2000 करोड़ के किए, तो टोटल हो गया 2800 करोड़। पर उन्होंने जब सप्लाई करने की टाइम आया तो ये कहता है कि 800 करोड़ में से सिर्फ 500 करोड़ मार्केट में भेजूंगा, ये कहता है 2000 करोड़ में से सिर्फ 1500 करोड़ भेजूंगा। अब जब आपके पास 2800 करोड़ हैं तो आप उसको भेज क्यों नहीं रहे हो मार्केट के अंदर? मार्केट में आपने जो मनी सप्लाई की वो तो 2000 करोड़ की, जबकि आपके पास 2800 करोड़ थे। अगर आप मार्केट के अंदर बाकी के 800 करोड़ भी भेज देते तो क्या होता? ध्यान से सोचो, आपको ये लगेगा कि लो जी अब तो गवर्नमेंट के पास जो है वो 2800 करोड़ थे, गवर्नमेंट बेवकूफ है, बीच में से सिर्फ 2000 करोड़ भेज रही है, बाकी भी 800 करोड़ लगा दे, वो इकोनॉमी के काम आएंगे, कुछ उससे रोड्स बन जाएंगी, कुछ उससे हॉस्पिटल बन जाएंगे, कुछ उससे स्कूल बन जाएंगे, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दे, कुछ पे लगाए। ठीक, तो इस बात का आंसर हम अभी पेंडिंग रखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई बार जितनी मनी जो है उसको पब्लिश करते हैं उतनी मनी वो सप्लाई नहीं करते। अब वो क्यों नहीं करते?
ठीक। अब वो मनी सप्लाई कैसे की जाती है? अब क्योंकि अगर मनी सप्लाई करनी है तो उसके लिए मनी को पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छा अच्छा, मनी सप्लाई कौन प्रोड्यूस करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट छापती है ना, वो कॉइन्स छापती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नोट छापता है। तो भैया नोट छापते रहो, नोट छाप के बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लो, फिर उसको इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगा दो, तो उससे क्या होगा? इंडिया तो बहुत डेवलप हो जाएगा, लोगों के पास तो बहुत पैसे आ जाएंगे। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जब भी रिजर्व बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी करेंसी इशू करते हैं, इधर इट्स कॉइन्स और इट्स नोट्स, तो ये नहीं है कि अपने घर का राज चला हुआ है, ठीक है, कि जितने मर्जी करेंसी नोट जो है वो छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ, तो इंडिया बहुत अमीर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी नोट चाहें उतने वो नहीं छाप सकते। सो दे हैव टू रिमेन विद इन द लिमिट्स। मतलब एक लिमिट से ज्यादा वो मनी सप्लाई नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि वो मनी की प्रोडक्शन तो कर लेगा, मनी पब्लिश करके अपने पास तो रख लेगा, पर उसकी सप्लाई नहीं करेगा। अब ये क्यों नहीं करेगा? ये जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे हम इन चीजों के आंसर लेंगे कि क्यों रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर नोट्स और कॉइन्स पब्लिश क्यों नहीं करते, अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर नोट्स एंड कॉइन्स जो हैं उसको मार्केट में उसकी सप्लाई क्यों नहीं करते, इंडिया को बहुत अमीर कंट्री जो है वो क्यों नहीं बना देते। तो ये सारी चीजों के आंसर जो हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको मिलते जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि मनी सप्लाई जो है वो क्या है। पहली बात तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे। नंबर 2, इसके अंदर जो पैसे रिजर्व बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास रख लिए तो उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है। जितनी कमोडिटीज एक प्रोड्यूसर अपने पास रख लेता है, मार्केट में भेजता ही नहीं, तो उसको तो मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। ठीक, मतलब ये चीजें जो है वो काउंट नहीं होंगी। अब क्या काउंट होगा? ठीक, अब उसी से हम जो है अगला टॉपिक बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी अब हमने मनी सप्लाई को मेजर करना है। भाई इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने कितनी मनी सप्लाई की, हमने उसको मेजर करना है। भी उन्होंने 500 करोड़ भेजे कि उन्होंने 5000 करोड़ भेजे कि उन्होंने 50,000 करोड़ भेजे, तो कितनी मनी सप्लाई हुई हमने उसको मेजर करना है। इंडिया में मनी सप्लाई कितनी है, क्योंकि जितनी मनी ये पब्लिश करके मार्केट के अंदर भेजेंगे वाया कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, तो उससे से ही क्या होता है, हमारी जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिसाइड होती है। भी अब इंडिया के पास इतनी मनी सप्लाई है तो इसके बेसिस पे हमारे पास इतने पैसे हैं और इसके बेसिस पे हम ये वाली जो अपनी ग्रोथ पॉलिसीज हैं और ये जो हमारे प्लान्स हैं हम बना सकते हैं। जैसे पहले इंडिया के अंदर क्या होता था, पहले इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनते थे, ठीक है, तो 12 5 ईयर प्लान्स हमने बनाए, 1951 से हमने स्टार्ट किए और 2017 में हमारा 12th 5 ईयर प्लान जो है वो खत्म हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, नीति आयोग बना दिया। तो अभी नीति आयोग हमारी कंट्री के लिए प्लान्स बनाता है। अब प्लान बनाना है तो प्लान बनाने के लिए क्या होता है, वो कहते हैं लो जी इस बार हम एग्रीकल्चर पे इतने पैसे लगाएंगे, इंडस्ट्री पे इतने पैसे लगाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन पे इतने लगाएंगे, एजुकेशन पे इतने लगाएंगे, हेल्थ पे इतने लगाएंगे, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे इतने, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे इतने। तो वो क्या करता है, वो प्लान बनाता है। तो प्लान बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा या तो यहां से या फिर यहां से। अब इसने कितना इशू किया, इसने कितना इशू किया, ध्यान से सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इसने कितना इशू किया, इसने कितना इशू किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसने कितना पब्लिश किया, पब्लिश से तो बात ही नहीं है। पब्लिशिंग मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मनी। मैंने कहा वो मायने नहीं रखती है, पब्लिश करके जितनी प्रोडक्शन की उसमें से कितना मार्केट में भेजते हो वो चीज मायने रखती है।
सो इसका मतलब मैंने कहा अब इसने कितना इशू किया, इसने कितना इशू किया, मतलब इसने कितनी मनी सप्लाई की, इसने कितनी मनी सप्लाई की, उसी के बेसिस पे क्या होगा, हमारे जो प्लान्स हैं वो फ्रेम होंगे। हम 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, अभी नीति आयोग जो है वो प्लान्स बना रहा है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम क्या करें, मनी सप्लाई को मेजर करें। इंडिया के अंदर टोटल मनी सप्लाई कितनी है, मतलब हमारे पास भैया इतने पैसे हैं, तो उसके बेसिस पे हम ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू मेजर द मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई मेजर होगी कैसे, अब ये भी अपने आप के अंदर एक क्वेश्चन है। अब मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए, वर्किंग ग्रुप्स। वर्किंग ग्रुप्स आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि कमेटीज, कमीशन। तो बहुत सारी कमेटीज बनाई गई जिनको ये कहा गया कि आप ऐसा करो, आप ना मनी सप्लाई को मेजर करो कि इंडिया में टोटल मनी सप्लाई कितनी है। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए, में कोई एक वर्किंग ग्रुप नहीं था, कोई एक कमेटी नहीं थी, बहुत सारी कमेटीज बनाई गई। बेसिकली हम 4 कमेटीज की बात करेंगे। तो 4 कमेटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। किसी ने कहा भी ऐसा करो यार, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ये 3-4 चीजें पकड़ लो, इसको ऐड कर लो, तो उससे आपकी मनी सप्लाई जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जो सेकंड वाले आए वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये भी तो बीच में होना चाहिए, तो इसको भी लो बीच में, ठीक, तो अब इसको मनी सप्लाई बनाओ। तीसरे कहते हैं नहीं नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं, उसको बीच में नहीं लेना चाहिए, हाँ ये एक और है, इसको ले लो, तो उससे मनी सप्लाई आ जाएगी। जो फोर्थ है वो कहते हैं नहीं यार, आप फिर गलत कर रहे हो, इसको मनी सप्लाई में लो, तो ये बीच में ऐड करोगे तो मनी सप्लाई आएगी। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग ग्रुप्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज और कमीशन जो हैं, उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिए अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो हम बेसिकली जो है वो क्या करेंगे, इन जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके व्यूज स्टडी करेंगे। इनके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कौन सा वर्किंग ग्रुप क्या कह रहा है, मतलब कौन सा वर्किंग ग्रुप जो है, मान लो मैं कहता हूं फर्स्ट वर्किंग ग्रुप है, फर्स्ट वर्किंग ग्रुप कहता है कि 1 2 3 3 चीजें ले लो, मनी सप्लाई हो जाएगी। सेकंड वर्किंग ग्रुप कहता है कि नहीं एक और ले लो। थर्ड कहता है कि नहीं वो पिछले वाले को निकाल दो, ये वाले को ले लो। फोर्थ कहता है नहीं पिछले वाले को निकाला क्यों, उसको भी ले लो। तो ये जो 4 मेजर वर्किंग ग्रुप्स हैं जो इंडिया के अंदर फ्रेम किए गए इन ऑर्डर टू मेजर द अमाउंट ऑफ मनी, हम उन सारे के सारे व्यूज को पढ़ेंगे इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के अंदर, और फिर ये देखेंगे कि उन 4 के 4 जो मेजर्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। मतलब जो डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हैं वो अपने व्यूज को लेके कहां पे कितने कितने डिफरेंट हैं, और उसके बेसिस पे हम मनी की 2 डेफिनेशंस देंगे। एक होगा जिसको हम कहेंगे नैरो मनी, और एक होगा जिसको हम कहेंगे ब्रॉड मनी। नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। नैरो क्या होता है, छोटा, है ना, नैरो मनी। एक होता है ब्रॉड मनी, बड़ा। तो हम नैरो मनी ब्रॉड मनी दोनों को लेके चलेंगे। कई बार आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस भी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नैरो मनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड मनी। अब नैरो मनी और ब्रॉड मनी ये तब तक नहीं हो सकते जब तक हम मनी सप्लाई के जो डिफरेंट मेजर्स हैं हम उनको स्टडी नहीं कर लेते। सो हम ये जो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई है ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। सो उसमें हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो यही रहेगा कि हाउ वी कैन मेजर द मनी सप्लाई। सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।